Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Okay, beta. So today we're going to have our second class, and today we are going to start off with our very first topic that we will discuss. That is atomic structure. Okay. So, beta, in the last class, we had a very detailed discussion about the whole syllabus of the GCE O Level Chemistry 5070 and alongside IGCAC Chemistry 0620. Like so many different things we discussed, the syllabus, the content you can see. We discussed that it was like everything you can see is same, like 12 chapters in the IGCSE, 12 chapters in the GC O level, they totally are same. ठीक है, उसके अलावा the only thing that is different is the paper pattern and in what way that we already have discussed thoroughly. So the content that we are going to start from today, that will be for both the students of the IGCSE and the GCE O levels. And the very first chapter generally that we deal with is states of matter. ठीक है बेटा, सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करते हैं दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड यू ऑल आर प्रोबेबली very well aware of this chapter by this name, states of matter, because it is a type of chapter that we are used to, like, understanding the things from this chapter in grade 6, probably grade 7, grade 8, grade 9 even, and so on, because this is the very first chapter. This is something from which we start off with chemistry. Earlier in like different textbooks, जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस चेंज आया है उससे पहले जितनी भी टेक्स्ट बुक्स थी वो अभी भी दे आर वैलिड. बट द ओनली इशू इज दैट जो सबसे पहला चैप्टर बेटा उन टेक्स्ट बुक्स में होता था दैट वाज एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री. इफ यू रिमेंबर दैट, दैट वाज एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि इससे पहले जो पेपर पैटर्न था दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट. अच्छा, आई यूज टू स्टार्ट ऑफ विद स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रोबेबली एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू से, लाइक जो मेजर सिलेबस अपडेट आया है in 2023, उससे पहले भी I used to do that. So I can say that they have followed what I was doing because I thought that was right thing. क्योंकि बेटा experimental chemistry and methods of purification, as I told you, were somewhat the general starting chapters of so many different textbooks, and many teachers do start off with that. But after that update, that major update, so many things were changed. तो उसकी वजह से ये हुआ बेटा कि एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री और हमारे जितने भी इसके रिगार्डिंग चैप्टर्स है रिगार्डिंग द एटीपी, द प्रैक्टिकल थिंग, वो सब हमने बिल्कुल एंड में शिफ्ट कर दिया. एंड यू कैन सी द लेटेस्ट पैटर्न इफ यू वांट टू सी कि उसमें जो एमसीक्यूज हैं और उसके अंदर एटीपी में तो खैर वो चीज़ थ्योरी पेपर में तो बहुत रेयरली पूछी जा सकती है अलोंग साइड. बट एमसीक्यू एक्चुअली वो सेम पैटर्न हमें शो करता है, एमसीक्यू के 40 मार्क्स ऑफ द ईयरली एग्जाम, जो कि आपका सिलेबस का पैटर्न होता है. उसमें अब जो आपके 2023 ऑनवर्ड्स एमसीक्यूज आ रहे हैं उसमें सबसे लास्ट वाले एमसीक्यूज होते हैं एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री और मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन के, बिकॉज दे हैव शिफ्टेड इट टू द वेरी एंड. सो देयरफॉर अगर हम वैसे भी समझते हैं कि हमें जिस चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, तो अर्लियर आई ऑल्सो यूज टू डू इट with that chapter, because the experimental thing, all this is the chemical stuff, is basically the practical stuff जो कि आपको side by side पता होना जरूरी है, but not as the base, not as the heart of the subject. So, as the heart of the subject, as I told you, the states of matter, which is a very vital chapter, लेकिन क्योंकि हमने इस चैप्टर को बहुत multiple times पहले डिस्कस किया है, and therefore in our orientation class we had a very detailed discussion of this chapter particularly. The reason behind is that हम वहां से आगे ही जाके चीजों को start करेंगे. Again, I can just recall what we did. We did the three states of matter: solid, liquid, gases, and we were only doing discussion, but it was obviously in depth for particularly this chapter. हमारे पास solid, liquid, gases के पार्टिकल्स की मूवमेंट, अरेंजमेंट, सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि हम देखते हैं, पहले उसका डिस्कशन था. देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इफेक्ट्स impurities कैन हैव ऑन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दीज आर आल्सो द थिंग्स इन दिस चैप्टर. आफ्टर दिस जिसकी तरफ हम जाते हैं बेटा, दैट इज डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड हाउ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. लाइक वी कंपेयर द
diffusion in all these three. And there are also some heating curves and cooling curves actually, which slightly also connects to the physics, the chapter of physics, that is the latent heat actually. द चैप्टर वी डू इन फिजिक्स इन थर्मल फिजिक्स, एक चैप्टर होता है बेटा, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। उसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द लेटेंट हीट, एंड देयर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट्स, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वो थोड़ा सा उस आखिरी वाले पार्ट से, वो जो कूलिंग कर्व्स हम करते हैं, हीटिंग कर्व्स हम करते हैं, उससे कोरिलेटेड है। दैट इज समथिंग ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट पार्ट। So therefore, as of now, as of today, we are going to start off with a very vital chapter again, I would say, for all the grades, the atomic structure. अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हम कहाँ से हम बात मैटर से ही शुरू करते हैं। बट मैटर से ओरिजिनेटेड जितनी भी ऐसी बातें हैं जो कि आपके लिए अब रेलिवेंट तो अपनी जगह है, बट अ मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है इतना ज्यादा, बिकॉज वो चीज बहुत ज्यादा थॉरली रिपीट हो चुकी है इन द पास्ट टाइम्स। So therefore, when we are talking about atomic structure, we are starting off with the discussion of matter. कि matter है क्या actually? Only this, and then moving on further deep down. अच्छा, एक और चैप्टर होता है बेटा, छोटा सा, वेरी स्मॉल चैप्टर, दैट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस, दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। वो भी एक ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको हम अलग से एक इंपॉर्टेंस दे के, उसको एक अलग से सिग्निफिकेंस दे के एज अ चैप्टर पूरा डिस्कस करें और उस पर हम अपना टाइम इन्वेस्ट करें। दीज आर लाइक अ फ्यू डेफिनेशंस विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट ऑब्वियसली एनीथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड वी वोंट बी टेकिंग फॉर ग्रांटेड। Each and everything, each and every little thing, each and every small thing, big thing, हर चीज हमारे लिए equally important है, so we do not have to miss anything out. So उसी से कुछ important connected definitions हम यहाँ पे start करते हैं, and then we move on to the actual deep down discussion of the atom and the structure of the atom. So over here, while starting this chapter, I have written a few things already for you. And the very first thing, if I zoom in, is actually the definition of matter. ठीक है बेटा? So in this definition and in every particular kind of definition, what you need to understand, आपसे कभी definition पूछते हैं टीचर्स, तो कभी होता है यू गो ब्लैंक, यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स, या आप वो चीज सही से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, नर्वस हो रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट अचानक से चीजें पूछ लेते हैं। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इफ यू आर अटेंटिव इनफ ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग दैट कॉन्सेप्ट, यू नीड नॉट टू मेमोराइज द थिंग। एक्चुअली लेटर ऑन तो हम चीजें बेटा मेमोराइज ही कर रहे होते हैं, इट इज ट्रू, बट दैट एक्चुअली इज फ्रॉम गेटिंग द कॉन्सेप्ट इन साइड। कॉन्सेप्ट आपको पता है अगर, तो वट एवर द कॉन्सेप्ट इज, जस्ट राइट दैट इन द लैंग्वेज एंड यू विल बी गेटिंग द डेफिनेशन। सो व्हाट हैपन, समटाइम्स आपसे पूछते हैं डेफिनेशन याद है, भूल गए, क्यों भूल गए? बिकॉज याद की थी, याद तो नहीं करना है, ठीक है? दिस इज टू बी टेकन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। याद नहीं करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है चीज को, ठीक है? एक्सप्लेन मैंने करना है, अंडरस्टैंड आपने करना है। मैटर क्या है, या कोई भी चीज, इफ लाइक मैटर इज नॉट दैट मच बिग फॉर यू, कोई और डेफिनेशन आ जाती है तो आप उसको एज अ डेफिनेशन राइट आउट नहीं कर पाते, या एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या वो वर्ड्स पर्टिकुलरली जो की वर्ड्स की तरह यूज होते हैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट हैव टू गेट द की कॉन्सेप्ट, द डेप्थ इनसाइड इट। मैटर से शुरू करते हैं बेटा। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग that occupies space and has mass is called matter or is known as matter. हमारे पास बेटा कैम्ब्रिज में, इन योर एनी ऑफ द सर्टिफिकेशन लेवल्स, इवन इन द एडवांस लेवल्स, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? they emphasize on writing the concept, the core concept, the minimum thing that makes us understand about the thing which is being asked. So अगर आप इवन ये लिखते हो साथ में, इज कॉल्ड मैटर, दैट इज फाइन, या इज नोन एज मैटर, मतलब ये नहीं है आई एम सेइंग कि लाइक आई एम रिमूविंग इट, क्या वो आप नहीं लिखो, बट आई एम सेइंग द मिनिमम थिंग इज जस्ट द डेफिनेशन, राइट इट, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। जितने कम अल्फाजों में बात समझ आ रही है वो ज्यादा इफेक्टिव है। सो मैटर कोई भी चीज है, उसके बहुत सारे स्टेट्स हैं, हमने पढ़े हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है बेटा?
और एक और स्टेट होता है, उसे हम इतना ज्यादा रेफर नहीं करते हैं, प्लाज्मा स्टेट। वो बहुत ही एक डिफरेंट डिस्कशन में हम चले जाते हैं, एक बहुत ही डिफरेंट डिमेंशन में हम चले जाते हैं। सो कोई भी चीज जो है वो मैटर है, जो एग्जिस्ट करती है वो मैटर है, वो जगह लेगी। कोई भी चीज आपके पास पड़ी हुई है तो कोई ना कोई जगह ले लेती है वो। ठीक है, अच्छा कोई चीज ऐसी है जो आपको नजर नहीं आ रही, सो इट्स नॉट कॉल्ड इनविजिबल, इट इज कलरलेस, बिकॉज इनविजिबल समथिंग वेरी डिफरेंट, वी कैन नॉट लाइक कन्वर्ट इट लाइक यू कैन से link it into our discussion. Colorless is the word, valid word for any gas which is nearby you, but it is like not being seen because it does not have any color. It is colorless. एयर के बारे में हम कहते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज कलरलेस। तो वो आपको नजर नहीं आती, बट हवा अपनी एक जगह ले रही है, पार्टिकल्स की उसके अंदर स्पेसिंग ऐसे होती है कि वो जगह इस तरीके से नहीं लेती कि वो फिट हो जाए वहां पे और उसके आसपास कोई कुछ मूव ना कर सके, हम उसके थ्रू भी जा सकते हैं, यू नो दैट, एयर के, क्योंकि उसके पार्टिकल्स होते इस तरीके के हैं। ठीक है, सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, चाहे वो चीज कलरलेस है, चाहे वो चीज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, दैट इज मैटर। एंड ऑब्वियसली उसका कुछ मास होगा, बहुत कम हो बहुत ज्यादा हो, बट कुछ मास होगा। मोहम्मद रयान, डू यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज? सर उसमें जो आपने बोला कलर है सर, उसमें गैसेस में सर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल होता है ना? नहीं 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 बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती एयर में। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में है तो वो एयर पोल्यूटेड है और काफी हार्मफुल है हमारे लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इफ आई टेल यू अबाउट द यू कैन से कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, तो आई बिलीव सबको पता होगा, 78% इन द एयर वी हैव नाइट्रोजन गैस, 21% वी हैव ऑक्सीजन गैस, 1% जो बच गया रिमेनिंग, उस 1% में वी हैव अ सेट ऑफ मोर थिंग्स, वी हैव नोबल गैसेस, वी हैव वाटर वेपर एंड वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। अब होता यह है कि जिस टेम्परेचर पे करंटली आपके इर्द गिर्द एयर है ना, उन सब गैसेस को इस कंडीशन में, लाइसी बात है, वो सब गैसेस की फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक सबलाइम सब्सटेंस होता है। वी विल बी ऑब्वियसली लेटर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज सबलाइम, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इट्स गुड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन which is directly not connected to it, but it is somewhat interesting for the class as well. तो बेटा सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक चीज के बारे में पढ़ाया आपको ये जाता है कि वो सॉलिड से हीट होने पे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या गैस से वो वापस से फ्रीज अप होने पे या कंडेंस होने पे डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअल में ऐसा 100% ट्रू नहीं है, बिकॉज ऐसा बिल्कुल एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं है कि वो चीज लिक्विड स्टेट में स्टे ना करे। बहुत बहुत ना होने के बराबर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इट गोज इनटू द लिक्विड स्टेट एंड देन टू द अदर स्टेट। तो इनडायरेक्टली वी कैन से कि सॉलिड से हीट होने पे वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में लिक्विड आके गैस में कन्वर्ट हो जाती है, या गैस से अगर आप उसे कंडेंस करते हो तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिक्विड में रहती है, पता चलता भी नहीं आपको, और सॉलिड बन के जम जाती है। तो ये प्रॉपर्टी है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की जो अंडरगो करते हैं सब्लिमेशन, या फिर जो एग्जिबिट करते हैं दिस फिनोमेना ऑफ सब्लिमेशन, जिसमें आपके पास आयोडीन भी आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इट। तो जब हम इसको एयर की प्योरिफिकेशन करते हैं ना, और एयर को फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से जो है कलेक्ट करते हैं, उसमें ये चीज होती है। ऑल्दो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ओवर हेयर कि वो प्रोसेस, ये जो आपका सेपरेशन का है एयर के कंटेंट्स का, वो अब आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, जो कि आपके केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट के चैप्टर में पहले होता था, बट नाउ इट इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम देयर। सो वी वर लाइक गोइंग समवेयर एल्स, बट स्लाइटली वी कैन कनेक्ट थ्रू इट। तो कोई भी चीज आपके इर्द गिर्द बेटा है, दैट इज मैटर। द नेक्स्ट थिंग विच वी आर कमिंग टूवर्ड्स इज एलिमेंट। नाउ कमिंग अप टूवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी मच टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आई पर्सनली बिलीव, एलिमेंट एंड एटम। एलिमेंट और एटम बेटा कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनमें समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज। ठीक है, और लाइक इट्स नॉट द केस फॉर एवरी वन, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरी वन, वी कैन से जनरली or mostly or sometimes only, I can say only a few people may get confused. So how we can differentiate, we need to understand again, जो चीज है वो लिखनी है बस, इट इज दैट सिंपल। अच्छा एलिमेंट की भी आप अगर डेफिनेशंस देखोगे तो कभी कभार कुछ डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशंस है, इतना लंबा करने की हमें जरूरत ही नहीं है। इट इज द इजीएस्ट वे टू लाइक स्टडी इन ओबीसी कैम्ब्रिज, जिसमें आपको सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। शॉर्टेस्ट आंसर्स आर लाइक रिटन ओवर हियर।
सो एलिमेंट के बारे में वी कैन से, देखो एलिमेंट क्या है, सबसे पहले तो इन द पीरियोडिक टेबल देर आर 118 एलिमेंट्स विच आर डिस्कवर्ड अप टिल नाउ। ठीक है, आज तक जो डिस्कवर हुए हैं बेटा वो है 118 एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो अब तक पता चल चुके हैं, कहीं ना कहीं से डिस्कवरी सालों से चलती आ रही है, फाइनलाइज अब जो है हमारे पास एलिमेंट्स जो है। पीरियोडिक टेबल एक चीज होती है जो हम पढ़ते हैं, जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे भी, उसमें अरेंज होते हैं इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि अभी हमारी आने वाली बात है। तो जो एलिमेंट है बेटा वो एक प्योर सब्सटेंस होता है, खालिस चीज है, प्योर सब्सटेंस। दैट मींस एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वही उसकी प्योरिटी है, और वही बात तो मैंने लिखी हुई है, और वही तो उसका डेफिनेशन है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस। और क्यों है प्योर सब्सटेंस? विच कंटेन्स वन टाइप ऑफ एटम ओनली, या यू कैन राइट वन काइंड ऑफ एटम ओनली, बस खत्म। और कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है हमें। एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव ओवर हियर। एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं। एलिमेंट इटसेल्फ जो है वो क्या है? इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट आज तक हमारे सामने आ चुके हैं, लाइक हाइड्रोजन है अगर, तो हाइड्रोजन का जितना भी क्वांटिटी आपके पास है उसमें हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होंगे, बट किसी और के नहीं होंगे, वरना तो वो एक चीज कोई मिक्सचर बन सकती है, ऑब्वियसली कंपाउंड बन सकती है, बिकॉज इफ इट्स अ केमिकल रिएक्शन फॉर्मिंग थिंग तो वो कंपाउंड बन जाएगी। तो वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई, प्योर तो रहा ही नहीं। वो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ वही एटम है जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स है, हीलियम में सिर्फ हीलियम के एटम्स है, इन द सेम वे। सो दिस इज एलिमेंट। एलिमेंट के भी अगर अंदर चले जाते हैं हम, यानी कि छोटे 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 एटम्स होते हैं उसके। अब छोटा एटम है तो वही बात तो पहले लिख दी हमने, एटम क्या होता है? बहुत छोटा होता है। वही बात जो पता है बस वो लिखनी है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, although actually it has like obviously being known at the moment, at like as of now, कि इससे भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं जो एटम के भी अंदर होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर्टिकुलरली, बट इवेंचुअली आई एम। तो एटम वैसे डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा कहते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एन एलिमेंट। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एन एलिमेंट भी कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर भी जितना है आपके पास उन सब में क्या है, कुछ ना कुछ जो भी है वो वही 118 एलिमेंट्स ही कहीं ना कहीं मौजूद है, हर एलिमेंट, हर मैटर के अंदर। हर चीज जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है उसमें कौन सी चीज है? एलिमेंट्स है। तो यू कैन राइट इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, या फिर इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, या फिर इन एन एलिमेंट, इस तरीके से। विच इज इनडिविजिबल, दो बातें वही लिख दी हैं। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है बेटा? अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग अबाउट माई राइटिंग ऑफ डेफिनेशंस, माई वे ऑफ राइटिंग द डेफिनेशंस फॉर यू टू मेक इट मोर हेल्पफुल। कि जब भी मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, नॉट ऑब्वियसली इन ऑल ऑफ देम एज इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल ऑफ देम, बट इन मेनी ऑफ देम, मैं आपको एक स्लैश के बाद इवन लाइक नॉट ओनली वन, ट्वाइस, थ्राइस भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, रिप्लेसमेंट वर्ड्स होते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। दैट दिस मीन्स दैट, और यू कैन राइट दिस इंस्टेड ऑफ दैट। तो बेटा इनडिविजिबल, इनडिविजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। मतलब जो एटम होता है ना बेटा, बहुत छोटा होता है, और उस एटम के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, बट उस एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। इट इज इनडिविजिबल। ठीक है, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एटम, और एक जैसे कि मैं इधर छोटा सा एक डॉट बना देता हूं। ये नहीं कि ये तो मैं यहां बना रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, अगर हम बोर्ड पे पढ़ रहे हो, व्हाइट बोर्ड पे, तो वो थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। बट व्हाट आई मीन टू टेल यू इज दैट एक डॉट भी अगर आपके सामने फिलहाल मौजूद है ना, this dot contains millions of atoms inside it. You need to understand that. ठीक है, और बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एन एलिमेंट, या फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। आगे हम जरूर चलेंगे टूवर्ड्स अ फ्यू मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कनेक्टेड टू इट, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एज आई हैव बीन सेइंग द थिंग्स फॉर अ while, I need to just have a confirmation of, although it's very basic, but still,
जो भी हम अब तक बेटा डिस्कस कर चुके हैं उसमें किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी, प्लीज टेल मी नाउ, तो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब्दुल्ला, आयशा, फातिमा, हफ्सा, अहमद, रयान, उमर, सारा। ठीक है, इन order to like obviously save time you can just make this thumb which most of you are making also, and you can write clear, you can write no issues, और आप जो है माइक यूज करके भी कह सकते हो, वट एवर यू लाइक। ठीक है बेटा, सो कमिंग अप टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसपे बेटा बहुत सारा आगे आने वाला जो स्टफ है वो डिपेंड करता है। इवन मैं ये कहता हूं कि इतनी छोटी चीज है ना बट उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्या है बेटा वो? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आगे भी आप जाते रहोगे ना इन द कमिंग चैप्टर्स, लाइक ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ लेफ्ट इन दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन बॉन्डिंग, देन इवन फर्दर मोर, आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आएंगी कि हाँ ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ ली और ये अब तक हमारे साथ चल रही है। सो एज यू नो, बेटा आप एक बुक खरीदते हो या बुक आपके पास होती है, टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपके पास एक चैप्टर होता है, चैप्टर में आपके पास एक टॉपिक होता है छोटा जो बड़ा हो सकता है, और उसमें भी एक छोटा सा टॉपिक होता है, उसे कहते हैं सब टॉपिक। ठीक है, इवन इफ यू नो व्हाट इज अ वे, वे क्या होता है? WAY, रास्ता, राह को कहते हैं ना, रूट भी कहते हैं, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वे, बट वे क्या है? एक राह है, ठीक है। और उस राह में से एक छोटी सी राह निकल रही है, तो वो क्या हो गया? वे का सबवे। इवन द वेरी फेमस फ्रेंचाइज सबवे, यू हैव सीन, उसका जो लोगो होता है उसमें एक बड़ा सा एक वो रास्ता बना हुआ है, ऐसे वे बना हुआ है, उसमें से एक छोटा सा रास्ता बाहर निकल रहा है, समथिंग लाइक दैट ना, रिप्रेजेंटिंग सब वे। तो सब जो टर्म होती है बेटा, इसको हम यूज करते हैं in order to indicate about something which is inside a particular thing, यानी कि अगर एटम की बात कर रहे हैं तो एटम के अंदर क्या होगा? सब एटॉमिक पार्टिकल। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है बेटा? आई होप आप लोग जो है, मैं बता रहा हूं जो चीजें जो आपके सामने आपको नजर आ रही हैं वो नोट डाउन कर रहे होगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन एवरीथिंग एज ऑफ अ रेगुलर क्लास, दिस इज एज योर रेगुलर क्लास, so everything is very well important and we'll be doing each and every small thing over here. So over here this is a table now in front of you बेटा, ये टेबल है किसका? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप सब जो भी अभी फिलहाल अपने हाथ में जो है मतलब ये चीजें लिख रहे हैं आपके नोटबुक्स वगैरह के अंदर, आप सबके हाथ में एक चीज है, ठीक है ना, और वही है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या है वो बेटा? दैट इज पेन। क्या है बेटा? पेन। लिख रहे हो आप लोग पेन से? ठीक है, दिस इज पेन। पेन इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जस्ट अ शॉर्ट, जस्ट न्यूमोनिक टू मेमोराइज दीज थ्री। ऑल्दो बहुत ज्यादा रिपीटेडली आप पहले से पढ़ चुके होते हो तो फीड हो चुका होता है माइंड में, आई नो, बट इवन स्टिल इन दिस ऑर्डर इफ यू लाइक वांट टू नो, तो एक पेन बन जाती है, PEN। बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल जनरली जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा। अच्छा, चार्ज की बात की जाए, पहली चीज हमारी चार्ज होती है, ठीक है। चार्ज का मतलब क्या है कि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है। इसको भी थोड़ा सा इजी बनाया जा सकता है आपके लिए। प्रोटॉन आता है बेटा P से, और पॉजिटिव भी आता है P से, तो प्रोटॉन होगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और जो ये साथ में वन है बेटा, ईच एंड एवरी टर्म हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। तो व्हाट यू नीड टू से, ये है पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या है इसका? ये है इसका चार्ज। और ये जो नंबर है ना वन, जैसे कि ये है वन, ये है बेटा इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा वो एक अमाउंट को कहते हैं, एक सर्टेन अमाउंट को कहते हैं कि भाई प्लस तो है, लेकिन प्लस कितना? +1। मैग्नीट्यूड ऑफ +1, चार्ज ऑफ प्लस, मैग्नीट्यूड ऑफ वन। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज ऑफ माइनस, मैग्नीट्यूड ऑफ वन। P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, ठीक है। ई से इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो नेगेटिव ई से नहीं आता है बट ऑब्वियसली दूसरा चार्ज बचा ही नेगेटिव है, तो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सो इलेक्ट्रॉन इज -1, ठीक है बेटा। और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग दैट इज ऑल्दो नॉट वेरी मच यू कैन से डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
बट समथिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपसे कभी पूछे, वैसे ही पूछे, इट्स नॉट लाइक द केस कि हर चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाए कि एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, आपको चीज समझनी भी तो है, उसी से वहां पहुंचोगे ना। सो इफ एनीवन आस्क यू कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज, आप बताओगे जीरो। ठीक है, देखो अगर कहने को न्यूट्रल भी कहते हो ना तो आगे वाला समझ जाता है कि आपको पता है बात। बट न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रॉन का नेचर है। न्यूट्रल होना न्यूट्रॉन का नेचर है। ना पॉजिटिव है वो, ना नेगेटिव है, ना किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, ना किसी से रिपेल कर रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट अहेड है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर, एंड चार्ज इट हैज ऑफ जीरो। नंबर इज द चार्ज एक्चुअली। ठीक है, प्रोटॉन इज +1, इलेक्ट्रॉन इज -1, एंड न्यूट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ जीरो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज द मास। मास क्या होता है, उसका कितना वजन है। ठीक है ना, हम नॉर्मली कहते हैं कि भाई कितना वेट हो गया है, वेट बढ़ा लिया है, वेट गेन कर लिया है। ऑल्दो वैसे जनरलाइज्ड वे में हर जगह यही टर्म यूज हो रहा है, बट मास इज एक्चुअली समथिंग विच इज इन केजी, किलोग्राम्स में हम उसे मेजर करते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, बट द एसआई यूनिट इज केजी, वैसे जो मास का वैसे हम यूनिट कंसिडर करते हैं। और इवन अगर हम बात करते हैं हमारे वेट की भी ना, तो वो भी वेट नहीं होता है जनरली, वो मास ही होता है एक्चुअली। बट वो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल के अकॉर्डिंगली उसे वो लोग वेट कहते हैं, ऑल्दो उसमें अगर हम कहें भी तो उसमें 9.8 मल्टीप्लाई होना चाहिए, दैट इज समथिंग डिफरेंट रिलेटेड टू फिजिक्स। मास, यहां पर जो हम मास की बात कर रहे हैं बेटा, हम ये बहुत एक छोटे अंदरूनी मास की बात कर रहे हैं। एटम के भी अंदर जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके मासेस की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन का मास होता है बेटा 1 यूनिट। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1 यूनिट। यूनिट क्यों लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो यहां पर हम कोई यूनिट वैसा वाला नहीं लिखते हैं, केजी वगैरह, हम यहां पर लिखते हैं सिर्फ यूनिट। बस जिन चीजों में यूनिट की जो है अपना रिक्वायरमेंट एज सच नहीं होती है बेटा, वहां पर हम यूनिट लिख देते हैं डायरेक्ट, 1 यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, वो क्वांटिटी। 1 यूनिट, एक का 1 यूनिट है, दो के 2 यूनिट है, तीन के 3 यूनिट है। कभी कोई चीज हम मंगवाते हैं, या कुछ लोग जो आजकल बिजनेस वगैरह करते हैं ना, तो वो कहते हैं यूनिट कितने हैं, मतलब आपको 12 पीस चाहिए या 12 यूनिट चाहिए, वो टर्म होती है। यूनिट का मतलब होता है वो उसकी अमाउंट ना, एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, दो प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, इस तरीके से। और एक और चीज आप देख रहे होगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है AMU। ठीक है, जो कि मैंने सेकंड में नहीं लिखा है, तीनों के लिए सेम है, वहां जगह नहीं थी मेरे पास। सो AMU इज एक्चुअली ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ थिंग, बट इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। मतलब वही हो गया उसका कि उस एटम के अंदर उसका मास का जो यूनिट है, वो है ये 1 यूनिट। यूनिट का मतलब AMU, एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, न्यूट्रॉन का मास भी आप देख सकते हो बेटा 1 यूनिट, एंड इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 1/1840। 1/1840। बेसिक मैथमेटिक्स की बात करूं मैं आपसे अगर बेटा, तो अगर एक चीज का मास है 1/1840, तो आप में से क्या मुझे कोई आंसर दे सकता है कि इस नंबर को अगर मुझे 1 बनाना है, इस नंबर को, ये फ्रैक्शन में जो नंबर है जो 1 बनाना है अगर इसको, तो मुझे किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट स्टिल लुकिंग फॉर आंसर्स। सर 1840 से। 1840 से सिंपली। ठीक है, मल्टीप्लाइंग दिस बाय 1840। इफ एनीवन इज नॉट गेटिंग दिस दे कैन आस्क मी, बोल दो इट्स इजी। बट अगेन आई वुड से इजी के चक्कर में हेजिटेशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्वेश्चंस चाहिए इफ यू आर हैविंग एनी। वन सर ये अपॉन बेसिकली इस तरह वर्क करेगा ना कि मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1840, 1840 हो जाएगा, फिर बिल्कुल, 1840 डिवाइड बाय कैंसिल 1841 हो कैंसिल, जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये कैंसिल हो जाए ऐसे कह लो, या 1841 से मल्टीप्लाई करा तो 1840 हो गया, और 1840 नीचे भी लिखा हुआ था तो वो कैंसिल हो गए, 1 1 ही बचा, तो आंसर हमारा 1 ही आया एट द एंड। कैंसिल हो जाए, ऐसे हो जाए, हर तरीके से यही है। सो बेटा इफ यू वांट टू कन्वर्ट 1/1840 इनटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये किसके हो जाएगा, 1 के। तो इसका मतलब उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 1840 से,
और इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि जो प्रोटॉन है उसका मास इलेक्ट्रॉन के आगे 1840 टाइम्स ज्यादा है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को अगर मैं 1840 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन। आप ये देख सकते हो ये कैलकुलेशन में, ये जो चीज थी ये था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसे मैंने मल्टीप्लाई किया 1840 के साथ, और जो आंसर आया है वो आया है मास ऑफ प्रोटॉन। आप देख सकते हो आपके सामने, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 1840 टाइम्स होने के बाद प्रोटॉन के मास के बराबर पहुंचता है। दैट मींस मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी इतना ज्यादा उसके मास से बड़ा है, ज्यादा है। So these are the discussion of the masses of protons, electrons, and neutrons. And the next thing that we have is the position. पोजीशन क्या? ये स्कूल में फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन वाला कोई पोजीशन नहीं है बेटा। ऑल्दो लिखा हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड तरीके से होगा, ऑल्दो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बट ये है एक्चुअली द पोजीशन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड द एटम इन रेलेवेंस टू द न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके लिए नीचे मैंने आपको एक और लास्ट चीज जो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, वो क्या दी हुई है? दी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन कहां होते हैं बेटा? इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। कहां होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स कहां होते हैं बेटा? इनसाइड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं बेटा? आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। And in the same way, like this table is there in front of you, and this table actually mainly the positions and the labeling is being shown over here in front of you as the atomic structure. One more thing before going on towards this बेटा, आप लोगों को सबको मैं समझता हूं ये बात पता तो होगी कि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, या उसका मास, उसका जो चार्ज है वो जीरो होता है। बट वो क्यों होता है, ये अगर आपको नहीं पता तो ये मैं आपको जरूर बता सकता हूं। है ये तो पता है, बट क्यों है ये भी पता होना चाहिए। क्यों है बेटा? एक्चुअली बेटा जो भी न्यूट्रॉन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी न्यूट्रॉन होता है, जो भी न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर भी दो चीजें होती हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसीलिए अगर आप चार्जेस देखो तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1। +1 - 1 क्या हो जाता है? जीरो। ये एक्चुअल वजह है न्यूट्रॉन की कि उसका चार्ज जीरो होता है, बिकॉज एक्चुअल में एक न्यूट्रॉन के भी अंदर ये दो चीजें जुड़ी हुई होती हैं। अगर कभी न्यूट्रॉन टूटेगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी न्यूट्रॉन टूट जाएगा बेटा, तो उसमें से क्या निकलेगा? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग निकलेंगे उसके अंदर से, क्योंकि इन दोनों से जुड़ के बने हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से वो अंदर जुड़े हुए हैं। एक कंप्लीट अट्रैक्शन है जो कि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल से खत्म हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ चुके हैं। एक तो होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो वो तो एक अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो अपनी जगह है। लेकिन जब वो अट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जब चीजें जुड़ जाती है, तो उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल बना लेता है। वो पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में दोनों चीजें हैं, प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। वो हमें नजर नहीं आता है, हम उसे एज अ न्यूट्रॉन ही लिखते हैं, बट उसके भी अंदर ये दोनों जुड़े हुए हैं एक्चुअली। नाउ